Hi everyone, welcome to iQuanta. In this video, we are going to fill the I am Ranchi IPM admission form for 2025 to 30. Okay, so we all know that I am Ranchi does not conduct any separate exam of its own. It accepts IPMAT Indore score only. Okay, so you can consider the eligibility of IPM Ranchi same as that of I am Indore or IPMAT Indore. Okay, that is the first thing. Secondly, a lot of students were asking whether we have to fill separate form for Ranchi and pay the admission fees. Obviously, yes, because Ranchi has to conduct, it has to conduct its own process for your interviews and evaluation to give you the admission. Okay, so there must be some way for Ranchi to know that you have given IPMAT Indore, right? That is the reason you will be filling the IIM Ranchi IPM form separately and putting your IPMAT Indore application number, okay, over here in IPM Ranchi form. So on this very same page, we have options like RTI and all, okay, so these are of no use. If you go back, probably you can check the eligibility criteria on this page, imranchi.ac.in/IPM, the link at the top. Eligibility criteria is usually that you should have passed 10th and 12th with 60%, and for SC/ST PWD it should be 55% at least. Okay, and percentage of marks is calculated based upon board's regulations. So if your board allows you to calculate percentage according to the best five, then you can put best five percentage into M Ranchi form. Otherwise, if your board does not have any such regulation, you'll have to put the percentage by calculating the percentage of all the subjects in your mark sheet. Okay, so for CBSE students, there is no such restriction. Okay, so there's no such rule, I mean, which says that you have to calculate the percentage of best five. That best five percentage wala rule is for checking whether you pass or not. Okay, while calculation of percentage, for that the percentage of all the subjects has to be calculated. Okay, it has been written over here. I am Rachi accepts score of IP Mat Indore only. Okay. Okay, fine. Let's go to the admission page. Click on apply now at the bottom. And this page opens up in front of us, which asks me, have you registered or will be registering for IPMAT 2025? I am Indore. If I click yes, obviously, without filling the IPMAT Indore form, I cannot come to this. Okay, the last date to apply for Ranchi is 12th of April. You can read it clearly. Okay, then fill the form as soon as possible because, during the last few dates, website does not behave well. Okay, or there are technical glitches. Okay, then you have to enter the correct information. No modification will be allowed. No refund will be allowed if you cancel, if you put incorrect details and all. Okay. Uh, Now, if you do some sort of modification in the application form, it is not allowed. So you probably will have to apply again by paying the fees again through a different. You have to cancel your application form and reapply using different email ID and pay the application fees again. So very costly mistakes. Okay, don't do that. Now, it is about grades and CGP in class 10 and 12. You have to fill the equivalent percentage of marks as per the instruction of the respective educational board. So I've already discussed this. If your board allows best five, put best five ka percentage. Otherwise, calculate your percentage using the marks of all the subjects that are mentioned in the mark sheet. Okay. We go ahead. The application fees for general EWS OBC is given 2,500 and 1,250 for SCST and the PWD. DAP is PWD only basically. Okay. Then if we go ahead, then personal interview is tentatively scheduled in the month of June, July. They have failed to refresh their website. Okay. Usually every year they put the same page. So they have mentioned 2024 here. It will be 2025. Okay. Mumbai, Delhi, Ranchi, Hyderabad centers in offline mode. So इसका interview offline mode में होता है. And how the mode of PI process and center locations may be subject to change. क्या पता बाद में ऑनलाइन भी रख सकते हैं, वैसे ऑफलाइन ही होता है. ठीक है. देन आपका कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे. कोई भी फोटो अपलोड या फिर किसी भी चीज़ में इशू होता है, यू विल रीच हियर एंड you can reach out to this as well. Okay, this email. Now,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल दी आई पी मैट 2025 ID विच इज़ योर एप्लीकेशन नंबर। तो आपको आई पी मैट इंदौर से एक मैसेज आया होगा रजिस्टर करने वाले दिन, जिसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी मेंशन रहती है, AT2500 समथिंग एक नंबर होगा। ठीक है, ये आपको डालना है जहाँ पे आपको आई पी मैट 2025 ID पूछी जाएगी। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और मत डाल दीजिएगा। ठीक है, देन आपको एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे भी और एडमिशन के टाइम पे भी लाना होगा। एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास, सपोज EWS या OBC से आप हो और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 31 मार्च 2025 तक का वैलिड है, तो आप वो वाला भी डाल सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर का। एंड देन बाद में जब आप एडमिशन के लिए जाते हो और आपको यू हैव टू प्रेजेंट द सर्टिफिकेट अगेन, आप तब रिफ्रेश सर्टिफिकेट आफ्टर 31 मार्च 2025 का इशू वाला ले जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमको रजिस्टर करना है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है थ्रू एन ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। इससे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है और आप रजिस्टर हो जाओगे उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से। ओके, पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स आपको 1 2 3 वगैरह कुछ ऐसा डालना पड़ेगा नंबर्स उसमें, और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स @ हैश वगैरह भी डालना पड़ेगा। ट्राई कीजिए कि पासवर्ड आप अपना कॉम्प्लेक्स रखो। ठीक है, एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, एंड देन आपका नंबर्स होने चाहिए कुछ, एंड देन एक स्पेशल कैरेक्टर डाल के आप कर सकते हो। सो आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सपोज मैंने इस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है एंड मैंने अपना पासवर्ड जो भी सेट किया था वो मैंने डाला, एंड व्हेन आई लॉग इन तो इट सिंपली टेक्स मी टू द रजिस्ट्रेशन पेज जहाँ पे मुझे अपनी आईपी मैट की आईडी डालनी है। तो मैंने तो आईपी मैट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपकी सीट लूँ, बट मैंने सिर्फ सिंपल रजिस्ट्रेशन किया है, ना मैं पेपर देने जा रहा हूँ और ना मैं पेपर दे सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मेरा आईपी मैट आईडी है। ठीक है, आपका भी ऐसी कुछ AT वाला होगा, प्लीज़ इसको गलत मत भरिएगा, 5 बार देख करके चेक कर लीजिए बट गलत मत भरिए। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। देन यू पुट योर नेम। ओके, फिर आप अपनी ऑब्वियसली कंट्री हैव टू सेलेक्ट, देन यू पुट योर फादर्स नेम। ओके, देन आपकी ईमेल आईडी है, चेंज नहीं होगी, तो ऐसी ईमेल आईडी डालिए जो वर्किंग हो। ठीक है, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डालिए वर्किंग, जिस पे OTP आता हो, प्रॉपरली रिचार्ज हो। फाइन, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। ठीक है, देन आप आपका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो। फाइन, अपना एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस, बिल्डिंग नेम, जो भी फ्लोर नंबर है, देन आपकी लोकेलिटी। ठीक है, देन आपका जो भी सेक्टर वगैरह है, देन आपका टाउन सिटी। ओके, एंड देन पिन कोड। ओके, पिन कोड वगैरह डालना है, इससे आपका स्टेट वगैरह वो फेच कर लेगा। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन, अगर आप नॉन इंडियन सिटीजन है तो आप अदर देन इंडियन भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी वाले हो, आपका सर्टिफिकेट पूरा रेडी है तो चूज़ कीजिए, अदरवाइज आपको जनरल से अप्लाई करना है। जनरल को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पुट योर जेंडर। ओके, डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, एंड देन चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही ये मुझसे 10th का पासिंग ईयर पूछ रहा है। ठीक है, तो सपोज मैंने 10th यहाँ पास किया हुआ है। स्ट्रीम, स्ट्रीम में यूजुअली हमारी 10th में तो कोई स्ट्रीम होती नहीं है, कॉमन ही पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं है तो आप NA डाल सकते हो इफ नॉट एप्लीकेबल। स्कूल का नाम आप डाल सकते हो। ठीक है, फाइन, बोर्ड आपका ऑब्वियसली अगर CBSE तो CBSE, ICSE या कोई और बोर्ड है। ठीक है, या कोई यूनिवर्सिटी है, काउंसिल है, कुछ भी है वो डाल सकते हो। परसेंटेज आपकी कितनी थी। ठीक है, तो दैट यू हैव टू एंटर। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इफ एनी।
तो बेसिकली आपको सीबीएसई में जो रूल होता है 10th क्लास में, वो सीजीपीए इंटू 9.5 होता है। तो आपको जो परसेंटेज अपनी निकालनी है क्लास 10 में, अगर सीबीएसई से हो, तो आपका 10th में जो सीजीपीए आया था फाइनल, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ आएगा उसको इस फील्ड में डालना है। सपोज आई हैड 10 सीजीपीए, तो मेरा परसेंटेज होगा 10 इंटू 9.5 विच इज़ 95। अगर आपका सीजीपीए 9.4 था, तो आप 9.5 इंटू 9.4 करोगे, अपनी परसेंटेज यहाँ लिखोगे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट लिखोगे। ओके, ये आपको परसेंटेज भी एंटर करने दे रहा है इन पॉइंट्स। ठीक है, 12th, कीप ऑल द कीप ऑल ब्लैंक इफ रिजल्ट्स नॉट अवेलेबल। अगर आप इस साल 12th अपियरिंग हो, तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको पासिंग ईयर डाल देना है। तो सेलेक्ट, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप इस साल ही एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ईयर सेलेक्ट करोगे नहीं, है ना। डिप्लोमा, डिप्लोमा जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप वो डाल सकते हो। डिग्री अगर आपके पास है, ऑब्वियसली नहीं होगी, है ना, तो छोड़ दो। देन ऑनर्स एंड अवार्ड्स, स्कॉलिस्टिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, प्लीज प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 10 बेस्ट अचीवमेंट्स विच आर रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज मेंशन स्कूल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट्स ओनली। तो सपोज आपने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी मेंशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स्ट्रा करिकुलर। सपोज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर है कोई स्पोर्ट्स वगैरह या फिर डिबेट कंपटीशन, कुछ भी आपने जीता है, तो आप यहाँ पे वॉलंटरी, चाहे आपने वो कोई वॉलंटियर किया हुआ है ना, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर लिखोगे, अपनी अचीवमेंट का नाम डालोगे। ठीक है, मतलब कि यू विल राइट अबाउट योर अचीवमेंट कि सपोज आप नेशनल लेवल टीम में खेल रहे थे, या फिर स्टेट लेवल टीम में रिप्रेजेंट कर रहे थे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जनरली आपसे यहाँ पे एक लेवल भी बताया गया है कि स्कूल लेवल पे आपने किया था, या स्टेट, या फिर नेशनल लेवल पे। तो सपोज आप अगर ओलंपियाड्स वगैरह आपने दिए हुए हैं, तो वो आपका स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स के अंदर आएगा। ठीक है, और बाकी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट में आप अपनी अचीवमेंट को डाल सकते हो। ठीक है, कि played selected in national basketball team and then played this इस मैच तक मैं गया था एंड ये प्राइज जीता था, जो भी है। ठीक है, अदरवाइज आप सीधा अपना अवार्ड या रिकॉग्निशन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना कुछ भी डेटा डाल रहे हो अचीवमेंट के अंदर, मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा डेटा स्पेसिफिक हो, उसमें मेंशन्ड हो कि आपने जब पार्टिसिपेट किया था तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे अप्रॉक्स, और उसमें आपकी क्या रैंक या अचीवमेंट था। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी एंड ऑल। तो स्कॉलिस्टिक में आप अपना ओलंपियाड्स, या फिर अगर आपने बोर्ड में 95% से ऊपर लाया है वो डाल सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 100 आया वो डाल सकते हो। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट में। देन आर यू गेटिंग इट, आपको ये सब चीज़ें से मेंशन करनी है। स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, और एनी सच सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल, अगर आपने कोई किसी एनजीओ में कुछ कुछ काम किया, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है जो कि स्किल बेस्ड हो, वो भी आप यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको इंक्रीज करते रहना है अचीवमेंट्स का सेक्शन, तो आप ऐड मोर करके 1 2 3 4 आप 10 डाल सकते हो बेस्ट अचीवमेंट्स। ये आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यू के टाइम पे। देयर बी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर, एंड इट बिल्ड्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, बिकॉज मार्क्स जनरली सारे बच्चे लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी आप में कुछ एक्स फैक्टर है तो आपकी तरफ को उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है। बट प्लीज़ मेक श्योर आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है, वो हमेशा उसका वेट ज़्यादा रहता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू एनी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट। ओके, बिकॉज आईपीएम इज़ एन एकेडमिकली रिगरस प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, पहले उनको 5 साल रिगरस पढ़ाई करनी होती है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह आपके साइड में चलते रहते हैं, दैट यू विल लर्न, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। बट एकेडमिक अगर आप अच्छे हो तो एकेडमिक इसलिए भी अच्छा होता है बिकॉज फ्यूचर में जा करके अगर आप कैट का एग्जाम देते हो, आईपीएम में एग्जिट लेते हो, बीबीए के बाद दूसरे कॉलेज में जाने की कोशिश करते हो, तो कैट में भी एकेडमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं है, आपको प्रॉपरली जो टॉप के एम्स हैं वो कॉल नहीं करेंगे, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो किसी बी स्कूल में, तो कई सारे ऐसे बी स्कूल्स होते हैं जो आपके 10th 12th को भी कंसिडर करते हैं एकेडमिक्स को। इसलिए भी अच्छा है, प्लस आईएम्स के लिए भी अच्छा होता है कि वो एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट्स को वहाँ पे रखें। ठीक है, कई बार कंपनीज में भी ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से
एकेडमिक्स के बैरियर्स लगे होते हैं फॉर एंट्री इनटू, आई मीन फॉर जॉब्स एंड ऑल, फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल। सो एकेडमिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो प्लीज़ उनको ज़्यादा मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। एंड डू मेंशन कि आपकी रैंक 3 आई थी आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स और 80 स्टूडेंट्स एट दिस स्कूल, ओके, इन क्लास 10 वट एवर 12, फाइन। दैट वे यू कैन मेंशन योर अचीवमेंट्स, ओके। और यू कैन वॉच अ कपल ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब लाइक हाउ टू पुट योर अचीवमेंट्स ओवर योर, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आप अपनी अचीवमेंट्स अपने हिसाब से डालिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लेट्स अपलोड द फोटो एंड सिग्नेचर। तो सपोज आई हैव अपलोडेड माई फोटो, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 512 KB से नीचे होनी चाहिए। एंड इन द सेम वे सपोज मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पे अगर अपलोड कर देता हूँ, तो सपोज दिस इज माई सिग्नेचर, ओके। मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है एंड आई कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ओके। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू वगैरह पूरा दिख जाएगा, ठीक है। So once I've uploaded my picture and signature, I come to this page where I can finally verify all the information that I've put. Name, father's name, mother's name, date of birth, address, check everything again, okay? Then pin your email, working email, mobile number, alternate mobile number, category, country, nationality, gender, and then your 10th percentage properly calculated. 12th percentage, if you've entered properly calculated. I have not put 12th percentage because um, I have left it blank. That means I'm appearing in 12th this year. Also, as I told you, do make sure you are not straight away entering best of five. Okay, so just check into your board regulations. If only if your board allows best five calculation, percentage calculation based upon best five subjects, then only you put best five. Otherwise, CBSE has no such rule. You have to put the percentage calculating, including all the subjects. Achievement section, I've already told you how to put it and what to put there. And then documents, there were no such document asked, I guess. Let me go back and check if there was something like that which was asked. There was no such document, okay? Nothing in this section, nothing in the qualification section, right? And then there was nothing over here as well, okay? So let's simply go to the next step. The next step,
And I'll finally choose I hereby agree that information that I have submitted in this application form is correct and to the best of my belief. Fine. We confirm. Once I come to this page, I can choose UPI or internet banking. You enter your UPI ID or you choose QR. Okay. Click on pay now. It will generate a QR for you and you can simply scan and pay. You will get a message, okay, that you have successfully submitted. Save that application form for future. And that's it with your IPM Ranchi form filling. For all the updates or if you have any doubt, okay, you can comment. If you have any doubt with this particular video, you can comment. If you have any doubts in the form or want to know if you have any doubts in the form. Also, if you want to prepare for the IPMAT 2025 exam, then iQuanta has launched its own crash course, which starts from 27th of March. You can go to our website iQuanta.in/IPMAT. Link is at the top of the description. And once you come to this link, click on our courses, and this is your IPMAT crash course. You can get 1,000 off by using the coupon code crash IPM without any space in capital crash IPM. The course will be of 8,999 for you. We have rigorous classes, 6 hours every day, 2 hours each of quant verbal logical. Timings will be 10 to 12, then 2 to 4, then 6 to 8. Okay. Apart from that, we also have your practice sessions, late night practice sessions. Okay. That is going to cover a pretty much of all your syllabus. We are going to teach from the very basics. Just because it's a crash course doesn't mean that we'll not be touching the basics. Okay. Thank you so much. If you have any doubts left, you can comment and please subscribe to the channel for all the updates around IPM.